So, good afternoon, good evening, everyone. How are you? I hope सही चल रहा होगा लाइफ, वीडियोस देखते होगे, है ना? चलो, तो हम लोग ने पिछले सेशन में बात की थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस, है ना? तो लास्ट सेशन में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि देयर इज अ बॉय नेम्ड राम हु स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम. अपने घर से वो शुरुआत करता है. ही गोज टू हिज फ्रेंड्स प्लेस दैट इज एट पॉइंट बी. From there they both go to school, which is at a distance of 3 meters, right? This was the question which we asked. So the first part of the question is find the total distance traveled by Ram and displacement of Ram. Okay, so let us see how do we go about this. So Ram starts from this point. He travels 4 meters, goes to his friend's place, and from there he further travels 3 meters and goes to school, right? ये स्कूल है, ये इसके फ्रेंड का घर है. अब पूछा जा रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम. टोटल डिस्टेंस जो राम ने ट्रेवल किया. को दिस पॉइंट लेट मी कॉल ए, लेट मी कॉल बी, लेट मी कॉल दिस एज सी. So total distance which Ram has traveled is the total path which he has covered, isn't it? Total path, that is this distance and this distance. तो मैं इसको बोल दूं total distance is equal to distance traveled by Ram in going from A to B plus in going from B to C, isn't it? A से B जाने में उसको कितना डिस्टेंस लगा? 4 मीटर. B से C जाने में उसको कितना डिस्टेंस लगा? 3 मीटर. टोटल डिस्टेंस राम ने कितना ट्रेवल किया? 7 मीटर्स. ठीक है. अब देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पार्ट कह रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट विच ही हैज ट्रेवल्ड. टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है उनकी, राम की? तो सी, Ram यहाँ से starts, goes to B, from B he goes to C, A, B, C. This is 4 meters, this is 3 meters. अब I need to find out the total displacement which Ram is covering. Displacement हमने पढ़ा था. Displacement हमें कहाँ से, राम कहाँ से कहाँ गया? राम का इनिशियल पॉइंट ये है, A उसका इनिशियल पॉइंट है. फाइनल पॉइंट क्या है? C उनका फाइनल पॉइंट है. तो राम A से जाते हैं C पे, और A से C के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट होगी that will be the shortest distance. Isn't this the shortest distance? Yes, this line which I am showing it by green, that is the shortest distance. So अगर मैं total displacement की बात करूं तो that will be nothing but AC, isn't it? AC ही तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा. हाँ, AC टोटल डिस्प्लेसमेंट है. अब देखो, इन ट्राइंगल ABC, दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. यस, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो कैन आई से AC इज हाइपोटेन्यूज? यस, इट इज. सो आई नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस AC. We know from Pythagoras theorem, let me do it in the next page, then it will be right. This is 4 meters, this is 3 meters, this is A, this is B, this is C, है ना? तो हमको निकालना है AC की वैल्यू. We need to find out the value of AC. और हमने ये देखा है कि ये 90 डिग्रीज है, और AC क्या है? AC हाइपोटेन्यूज है इस राइट एंगल ट्राइंगल का. और हमको पता है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या सिखाता है? हमने ये पढ़ रखा है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. ये हमने पढ़ रखा है. सो
in this case perpendicular I am calling AB as base, AB का square plus BC का square is equal to AC का square. We need to find out AC का square is equal to AB का square plus BC का square. How much is AB? 4, 4 का square. How much is BC? 3, 3 का square. 4 4 जा 16, 3 3s are 9. Total is how much? 25. AC का square is how much? 25. Therefore, AC is how much? 5 meters. ये 25 मीटर स्क्वायर होगा, है ना? ये 4 मीटर स्क्वायर है तो ये 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ये 3 मीटर का होल स्क्वायर है, 9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है? AC is how much? 5 meters. So let's come back to the original problem. And in this question, what were we supposed to find? We were supposed to find out AC. अब ये हमको पता चल गया है, ये डिस्टेंस है 5 मीटर्स, है ना? तो AC is how much? 5 meters. ये देखो, टोटल डिस्टेंस जो राम ने ट्रेवल करा है इन दिस पाथ going from A to B and then again going from B to C was 7 meters which we have seen. Total displacement which he has traveled is AC which we have calculated as 5 meters. यानी ये देख लो, ये जा रहा है 7 मीटर और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है 7 meters. So distance is 7 meters and displacement is 5 meters. ठीक है? अब देखो एक और क्वेश्चन हम करते हैं. एक लड़का है, बॉय, who is running in a circular path. He starts from this point, circle of radius, let me call it as 2 meters का radius है. He starts from point A, let me call it that OS center, and he starts going in this direction, let me call it as clockwise direction, and he completes one revolution. ठीक है? While completing one revolution, I need to find the distance which he has traveled and the displacement which is he has traveled. ठीक है? अब इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं. तो देखो हो क्या रहा है. उसने ये शुरुआत करी है, वो इंसान यहां से ट्रैवल करना शुरू करता है और ये पूरा सर्कुलर पाथ ट्रैवल करके आता है. तो डिस्टेंस जो वो ट्रैवल कर रहा है दैट इज हाउ मच? दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. Isn't it? So how much is the circumference का फॉर्मूला? 2 pi r. 2 pi को 2 pi ही रखते हैं, r को 2 मीटर बोल देते हैं. That is 2 to the 4 pi meter is the distance. Distance कितना है? 4 pi meter है. अब हमको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट कितना है. This I need to find out. अब देखो हो क्या रहा है. वो इंसान इस पॉइंट से शुरू कर रहा है, A पॉइंट से, और घूम के इसी पॉइंट पे आ जा रहा है. So this is the initial point and the initial point is only the final point. So the shortest distance between the same point. If I ask you what is the shortest distance between these 2 points, you'll say this. If the point shifts here, the distance is this. If the point further shifts here, the distance becomes shorter. If the point is the same point, there is no distance. So the distance between 2 points, if they coincide, is how much? 0.
Therefore displacement is how much? 0. So see, the displacement will become 0. अब यहां पे देखो, डिस्टेंस की वैल्यू है पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 0. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई? छोटी हो गई डिस्टेंस से. प्रीवियस केस में जाओ, प्रीवियस केस में भी अगर आप जाओगे और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, कहाँ पे करोगे? यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, डिस्टेंस 7 मीटर्स था, वैल्यू बड़ी थी, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर्स था, वैल्यू छोटी हो गई. तो हमने दो एग्जाम्पल लिए और दोनों में हमने ये पाया, we have seen two examples and what we have found out is कि डिस्टेंस जो है हमारा वो बड़ा है in comparison to displacement. बट क्या ये ऑलवेज ट्रू है? If I say you and if I ask you, is this always true? True या false में आप क्या कहोगे इसको? तो अब हम एक केस डिस्कस कर लेते हैं, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? फिर हम वो केस, इसमें अगर हमें लगेगा कि कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो we'll see. ये हमारा अभी क्वेश्चन स्टेटमेंट है हमारा, ये हमारा सोल्यूशन नहीं है, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर अस कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इसका हमको आंसर फाइंड आउट करना है. तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी 4 मीटर्स और उस बंदे ने यही पाथ फॉलो किया. तो इन दिस केस व्हाट विल बी द डिस्टेंस? Distance will be the path followed. He takes this path, that is 4 meters. What will be the displacement? The path taken by him is the shortest path. यही shortest path है, तो ये भी 4 मीटर है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों equal हो रहा है. Both are equal. Distance and displacement are equal. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि distance is always greater than displacement? No, this will be a false statement. तो सही तरीका क्या है इसको लिखने का? सही तरीका है इसको लिखने का, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. सही है? तो हम क्या पाते हैं कि डिस्टेंस जो है या तो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के. ठीक है? तो आज के सेशन की हमारी लर्निंग यही रही. हमने क्या किया आज के सेशन में? आज के सेशन में हमने देखा कि डिस्टेंस, एक केस हमने लिया, पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हमने सॉल्व किया और पाया कि डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी है डिस्प्लेसमेंट से. हाउएवर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है उस केस में. फिर दूसरा केस हमने लिया सर्कल का. सर्कल में हमने पाया कि डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 0 आ रहा था, लेकिन हमारे डिस्टेंस की कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी. फिर हमने अपने आप से एक सवाल पूछा कि क्या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा? क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? तो फिर हमने एक ऐसा केस डिस्कस किया जिसमें हमने पाया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं. अगर वो इंसान शॉर्टेस्ट पाथ ही ले तो उस केस में उस इंसान का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही बराबर होगा. तो फिर हमने कंक्लूड क्या किया कि डिस्टेंस, हमने कंक्लूड ये किया कि डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैन आल्सो बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. दिस इज आवर कंक्लूजन फॉर द डे. ठीक है? अब नेक्स्ट सेशन में हम स्पीड और वेलोसिटी की बातें करेंगे. ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. इन केस ऑफ एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं. ठीक है? चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.